Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So as you know, we have started NCERT Foundation course in which we have discussed 12th class history subject where we have studied about part 1 theme in Indian history where we have finished part 1 and you can say theme first and name of the theme bricks, beads and bones of Harappan civilization. So those students who have not seen that videos, so go and see all that videos are already uploaded in our playlist. Okay, so we have started second theme and name of the theme kings, towns and farmers, in which we have discussed regarding our 16 Mahajanapada period where we composition our Rig Veda, where we have been seeing also Mauryan Empire. So today is the second lecture of what? Second theme. Okay, so let's start. Before that, we are going to introduce about a few foundation courses which are already going on, like reasoning, general science, maths and NCERT, which are already dealing by me. Okay, so and our Emblem team also going to announce few modular courses very soon, like history, economy, geography, political science and current affair, where these three things, science, reasoning, maths, are already going on, and English also there. So I am requesting to all those students, please go and see all those videos which are very beneficial for you. Okay, so let's start. So today our topic is what? Changing countryside. Okay, popular perception of kings. In the title of the basically what changes in countryside, where we are going to discuss in this topic. Okay, so let's see what this subject think about their rulers. Here the lines basically describe what प्रजा उनके बारे में क्या सोचती थी अपने राजा के बारे में. ओके, सो लेट्स सी. Obviously inscription do not provide. Here we are talking about inscription. Okay, inscription, it means that we have already discussed what? Written on hard surface, you can say like a stone. Inscription do not provide all the answers. Inscription यहाँ पे हमें पूरे answers provide नहीं करती है. Okay, in fact ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experience. Here historians try to say about what? जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो अपने अकाउंट्स नहीं छोड़ के गए हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को नहीं छोड़ के गए, जिसके कारण हमें पता लग पाए. तो हमें वो कैसे पता लग पाता है वो देखते हैं. नेवरदलेस फिर भी historians have tried to what? Solve this problem by examining what stories contained in anthologies such as the Jatak and Panchtantra. There were several stories, where historians try to read and try to extrapolate the what history of the common people. Understood? Many of these stories probably originated as popular oral tales. Oral tales, it means सुनाई जाती थी. After that committed to writing, उसके बाद उनको लिखा गया. The Jatak were written in Pali around the middle of the first millennium CE. यहाँ पे जातक स्टोरी की बात कर रही है जो क्या था? पाली में लिखा गया था. ओके, in which period? Middle of the first millennium CE. One story known as what? गणतेंदु जातक. ये गणतेंदु जातक के बारे में हम देखते हैं. व्हाट क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द विकेट किंग. इट मींस क्रूर राजा जो था, उनकी जो क्या रूल्स रेगुलेशन थी उसके बारे में ये गणतेंदु जातक जो स्टोरी है वो कहती. देखो, these included elderly women, man, cultivator, herders, village boys and even animals. इसमें ये सारे जो है ये इंक्लूडेड किए गए. When the king went in disguise to find out what his subjects thought about him. जब राजा अपने आप वेश बदल के जब प्रजा की सोच, प्रजा की समझ जानने के लिए जाता है तो वो देख पाते हैं जो प्रजा क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी ऑन द टाइम. Each one of them cursed him for their miseries. वो उनके जो भी दुख थे प्रजा को, वो राजा को कर्स कर रहे थे. ओके, complaining that they were attacked by rovers, because जो प्रजा थे उन पे रोवर्स अटैक करते थे नाइट में, and
बाई टैक्स कलेक्टर ड्यूरिंग द डे टाइम पे टैक्स कलेक्शन वेरी हाई था। तो वो प्रजा वहां पे अपने दुखों को, अपने मिजरीज को वहां पे डिस्क्राइब किया है। टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन पीपल अबंडेड देयर विलेज एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट। ड्यू टू ऑल दिस सिचुएशन पीपल अबंडेड देयर विलेज, जहां रहते थे वो छोड़ के और जंगलों की तरफ चले जाते हैं। Okay, in the forest, as this story indicates the relationship between what king and his subject. ये स्टोरी क्या हमें मैसेज देना चाहती है? रिलेशनशिप बिटवीन what प्रजा and king. Okay, so especially the rural population here try to say especially rural population could often be strained. उनका जो रिलेशन था not good. Okay, king frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demand oppressive. It means that king always try to fetch more and more resources, okay, and try to fill up their coffers, अपने खजाना को भरते थे, जिसके कारण peasants को लगता था ये जो डिमांडेड है, ये जो टैक्सेशन उन पे लगाया गया है वो बेसिकली क्या है? वेरी ऑपरेसिव है। ओके, escaping into the forest remained an option. So उनको जंगल में भागना ही एक उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता था, as reflected in the जातक स्टोरी, जैसा कि जातक स्टोरी में रिफ्लेक्ट किया गया है। Meanwhile, other strategy aimed at increasing production to meet what growing demand of taxes also came to adopted. Now in between that, a few people and in case a few communities try to find out a different way to produce more. Why produce more? Because the growing demand like taxation system was very high. So people ने क्या कुछ ऐसे उन्होंने वे मेथड फाइंड आउट किए जिसके कारण वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। सो वी आर गोइंग टू सी जो विच टाइप ऑफ मेथड्स वर बेसिकली देयर। सो स्ट्रेटेजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, तो हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखेंगे जो उनका प्रोडक्शन का कैसे इंक्रीज होता है। One such strategy was the shift to plow agriculture, हल की खुदाई के द्वारा, ठीक है, which is spread in fertile alluvial river valleys such as those of Ganges and Kaveri. Okay, where Kaveri? North, like Tamil Nadu. Okay, south. Sorry. Okay, Ganga is north basically. Northeast, you can say. Iron tree plowshare was used to turn the level soil in area which had high rainfall. ओके, तो आयरन ट्री प्लॉग सॉइल जो होता है, जो आपने देखा होगा हलों के जो आगे आयरन लगे होते थे, उससे खेतों की जुताई कही जाती है जहां पर रेनफॉल बेसिकली क्या था? हाई था। मोreover, in some part of the Ganga valleys, production of paddy was dramatically increased by the what? Introduction of transplantation. What is the meaning of transplantation? Oh, let's just a minute. We are going to see. Although this meant backbreaking work for the producer, उनके एक क्या हुआ? बहुत good efficiency like transplantation. When the method of transplantation occurred, transplantation it means when you try to seed of the word rice, you can say प्री नर्सरी पीरियड में उसको रखा जाता है, जो धान बोल सकते हो आपको, उसके बाद उसको वाटर लॉस जो फील्ड होते हैं उसमें उसको लगाया जाता है। ओके, so while the iron plowshare led to growth in agriculture productivity, its use was restricted to certain part of the subcontinent. While iron plowshare was introduced in certain part of the area, but there were certain areas also where this method was totally restricted. Oh no, which were the area? Basically cultivated in area which were semi-arid. Such part of the like Punjab, Rajasthan did not adopt it till the 20th century. Okay, and those living in hilly tracts in the northeastern and central part of the subcontinent practiced what? How culture, how agriculture, which was much better suited to their terrain. वहां पे जो how culture जो था वो ज्यादा suited था। Okay, जो टेरेन एरिया था वहां पे जो आयरन प्लॉगशेयर था उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ओके, अनदर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट, कुछ और स्ट्रेटेजी ऐसे देखते हैं उन्होंने क्या अडॉप्टेड किया टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज द यूज ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन फैसिलिटी भी तो होना बहुत जरूरी है। ओके, सो देखते हैं थ्रू क्या किसके वेल्स एंड टैंक्स के इरिगेशन करना उन्होंने स्टार्ट किया, एंड लेस कैनाल को लेस कॉमनली उन्होंने यूज किया।
community as well as individual organized what the construction of irrigation work. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज इरिगेशन वर्क ऑर्गेनाइज किया उन्होंने. ठीक है, द लेटर powerful men in including kings often recorded such activity in the inscription. All these activities are basically recorded by the which rulers, basically those who were basically very powerful. Okay, so difference in rural society. Here we are the new heading is difference in rural societies, where we'll see that a lot of difference was there. What were the differences? Let's see. Okay, while these technologies often led to an increase in production, the benefits were very uneven. कुछ ऐसे benefits थे जो uneven थे, equal नहीं थे. What is evident is that there was a growing differentiation amongst people engaged in agriculture. Stories, especially within it, the Buddhist tradition, where see we are going to a story, some story in Buddhist tradition refer to landless agriculture, laborer, small peasants as well as large landholders. Where in Buddhist tradition we are going to say few of all these things like small peasant, landlords, and you can say laborers also. Let's see. The term Gahapati, very important term. The term Gahapati was often used in where Pali text to designate the second and third categories जो होते थे उनको गहपति कहा जाता था. The large landowners as well as the village headmen, basically whose position was often hereditary, emerged as a powerful figures and often exercised control over what? Over the other cultivators. Okay. Early Tamil literature, where we are going to see also when we will start at modular course like Sangam literature. Okay, so in this literature you can say also mention different categories of people living in the villages. Okay, large landowners, what basically what we are going to call of large landowners? Vellard. आप याद रखिए, बहुत important है. And plugman को क्या बोलते थे? उजावर. And slaves were basically का अदिमई. Okay. It is likely that these differences were based on what? Differential access to land, labor and some of the new technology. ये जो differences थे on the basis of the what? Land, labor and technology. Okay, so देखते हैं उसके बाद in such a situation, question of control over what? Over land must have become what? Crucial. Okay, and as these were often discussed in the legal text. Okay, question regarding the कंट्रोल ओवर लैंड. और ये टेक्स्ट में आप देखेंगे, जो भी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, संगम टेक्स्ट और ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें डिस्कस होता था आमतौर पे. ओके, सो लेट्स आप देखते हैं सुदर्शन फुल ब्यूटीफुल लेक इन गुजरात, फाइंड का गिरनार, जो हम मैप में देखेंगे नेक्स्ट. Sudarshan Lake was artificial reservoir. We know about it from rock inscription, where we get the knowledge from where rock inscription of second century in Sanskrit. Okay, composed to record the what achievements of the Saka ruler Rudraman. रुद्रदामन जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट रूलर था, उसके कुछ अचीवमेंट्स है. पहले हम सुदर्शन लेक के बारे में देखते हैं. ओके, the inscription mentioned that the lake with embankment, okay, water channels was built by what? The local governor of the Mauryans. Okay, Mauryans time पे बनाए गए थे. How a travel storm broke the embankment. Okay, जो आंधी के कारण इनके जो embankments थे वो ब्रेक हो गए थे. वाटर गस्ट आउट ऑफ द लेक और वाटर वहां से स्प्रेड हो गए थे here and there you can say. तो रुद्रदामन जब वहां पे रूल करता है, who was then ruling in the area claimed to have got the lake repair using his own resources. जो रुद्रदामन वहां पे था उस लेक को रिपेयर किया वो own resources से, और कुछ भी प्रजा पे उसने टैक्स नहीं लगाया, without imposing what any tax on his subjects. Another inscription on the same rock, we are going to see few more inscription mention how one of the rulers of the Gupta dynasty got the lake repaired once again. This question again asks the which ruler basically repaired, which ruler made that. So okay, so just go and just try to remember all these things. So देखिए ये सुदर्शन मैंने लेक लिया गया, कैसे चारों तरफ से बना हुआ है, इसमें नदी है. और ट्रांसप्लांटेशन आप देख सकते हैं, ये यूज्ड फॉर पैडी कल्टीवेशन, आप बोल सकते हो धान की जो खेती आप करते हैं. वेयर वाटर इज प्लेंटीफुल, हियर सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्टेड, when the sampling have grown they are transplanted in waterlogged field.
दिस इंश्योर हायर रेशो और व्हाट सर्वाइवल और सैम्पलिंग। किस जो सीड्स होंगे उसको क्या प्री नर्सरी पीरियड में 15 to 80 डेज रखे जाएंगे, फिर जैसे जैसे उनका हल्का हल्का ग्रो होता है, सैम्पलिंग आता है, तो उसको फिर वहां से उठा के वाटर लॉस जो फील्ड होगा जहाँ पानी अच्छा होगा जिस खेतों में, उसमें उसको लगाया जाता है। ऐसे धान की आपने देखा होगा गांव में कैसे ही खेती किए जाते हैं। ओके, इंपोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, हम यहाँ पे देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज का और कैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बाउंड्रीज को लेकर। सो मनुस्मृति की यहाँ बात की, द मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन legal text of what early India, written in Sanskrit and compiled between which time period? C 2nd century C to C 2nd century C. Okay, BC, C 2nd century BC to C 2nd century C. This is what the text advised the king. ये जो टेक्स्ट है वो किंग को एडवाइज करता है, ओके, क्या करना है क्या नहीं करना है। Seeing that in the world controversy, जो कंट्रोवर्सी जो वर्ल्ड में कॉन्स्टेंटली अराइज होता है, व्हाट ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्रीज। इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का जो मार्किंग सिस्टम है वो एकदम एग्जैक्ट मैनर में नहीं था, जिसके कारण कंट्रोवर्सी रहा। तो वहीं पे हिस्टोरियंस कहना चाहता है हैव कंसील्ड बाउंड्री को कैसे कंसील किया, जब मार्कस बरीड स्टोन, बोन्स, काउ हेयर, ओके, ड्राई काउ डंग, ब्रिक्स, इसे सैंड, इसे बाउंड्री को कंसील किया जाए। ही शुड ऑल्सो हैव अदर सिमिलर, कुछ ऐसे भी सिमिलर सबस्टांस हो सकते हैं जो डिके नहीं हो सकते, वुड नॉट डिके इन द सॉइल बरीड एज हिडन मार्कर, ओके, एट द इंटरसेक्शन ऑफ द बाउंड्री। कुछ ऐसे यूज वहां किया जाए जिसके कारण वो डिके ना हो सके जब सॉइल डिके होता है। तो सो यहीं पे व्हाट दिस बाउंड्रीज मार्कर हैव बीन एडिक्वेट टू रिसॉल्व डिस्प्यूट, और डू यू थिंक जो ये बाउंड्रीज मार्कर होते हैं वो डिस्प्यूट को रिसॉल्व कर सकते हैं? यस, इफ बाउंड्री इज वेल डिफाइंड, ओके। देन गृहपति, अब देखो यहाँ गृहपति हमने पढ़ा था, वहां पे देखते हैं। गृहपति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज व्हाट कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रेन, स्लेव, वर्कर्स हु शेयर्ड ए कॉमन रेजिडेंस, ओके। ही वाज आल्सो द ओनर ऑफ व्हाट of the resources like land, animal and other things that belong to the household, okay. Sometimes the term was used as a what marker of the status of a man belonging to the urban elite including the wealthy merchant। एक गृहपति के बारे में है। recaptured territories of the former empire उड़ीसा अंडर गजपति पुरुषोत्तम देवा, ये है जैसे मालवा हो गया, जौनपुर हो गया, तो ये रिकैप्चर जो ट्रेसिस कहते हैं पुरुषोत्तम देवा के अंदर, ओके। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइट्स, अब देखते हैं लैंड ग्रांट्स कैसे होते थे वहां पे, ओके। From the early century of the Common Era, we find grants of land being made, many of which were recorded in where inscription. Some of these inscription were on stone, आप कह सकते हो, but most were copper plates। अभी दिखाएंगे copper plates का, हम अभी फिगर देखेंगे, पिक्स देखेंगे, which were probably given as record of the transaction to those who receive the land। जो लैंड को रिसीव करते थे वो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे लिखा जाता था। The records that have survived are generally about grants to religious institution or to Brahmans। जो religious institution और ब्राह्मण को जो लैंड दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। मोस्ट इंस्क्रिप्शन जो मोस्टली जो थे वो संस्कृत में थे। In some cases and especially from the 7th century onward, part of the inscription was in Sanskrit, okay, while the rest was in local language such as Tamil and Telugu। कुछ few inscription are also there which are basically local language, यहाँ पे बात की गई है। Let us look one such inscription, कुछ एक ऐसे inscription के बारे में हम देख रहे हैं more closely। प्रभावती गुप्ता, इसके बारे में पढ़ेंगे। Was the daughter of what? The most important in early Indian history, okay, चंद्रगुप्त सेकंड का। किससे मैरिड उनका होता है? She was married into another important ruling family of the what? वक्त का जो डेक्कन में होते थे उनके रूलर से उनकी शादी होती है। Who were powerful in the Deccan, okay। डेक्कन कहाँ था हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। In some cases and especially from the 7th century, part of the inscription, ये हमने डिस्कस कर दिया सेम लाइन। According to Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to resources, okay। here ये लाइन कहना चाहता है जो women independent नहीं थी to access the resources like land, okay। यहाँ पे however the inscription indicate the Parvati Gupta, Parvati had access to land
which see the granted, okay, this may have been because she was a queen. अब उन्होंने कुछ लैंड दान किया वो हम देखेंगे, और किस किस टैक्सेशन से वो एग्जेम्प्ट था लैंड, वो हम देखेंगे प्रभावती गुप्ता के बारे में। तो यहाँ पे ये क्या है, जो वो एक्सेप्शन थे, क्योंकि वो क्वीन था इसलिए उनको लैंड एक्सेस करने के लिए परमिशन था, एंड हर सिचुएशन वाज देयर फॉर एक्सेप्शनल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट प्रोविजन ऑफ लीगल टैक्स वर नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे प्रोविजन जो टैक्स है वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड नहीं है जो लिखा गया है। The inscription also gives us an idea about rural population. These included what? Brahmins and peasants. किसकी बात की गई? ब्राह्मण एंड peasants की, as well as other who were what? Expected to provide a range of production. What? They would have to obey the new lord of the village. Okay, अब यहाँ पे लिखाया गया है जो न्यू लॉर्ड, जो वहां पे राजा थे, लैंड लॉर्ड थे, वो जो बोलते थे, जो पीजेंट्स है वो उनका कहना मानते थे। ओके, परहैप्स पे हिम ऑल दीज ड्यूज, जो भी ड्यूज बचे थे वो उनको देते थे। लैंड ग्रांट्स सच एज दीज वन हैव बीन फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ऐसा हम देखते हैं बहुत सारे जो कंट्री के पास है, बहुत एरियाज में इसको हम पढ़ पाते हैं। ओके, देयर वर रीजनल वेरिएशन, कुछ रीजनल वेरिएशन है रिगार्डिंग द साइज of the land donated, like ranging from the small plots to vast stretch of uncultivated land, and the rights given to donees, जो rights उनको दिए गए थे जो रिसीव करते हैं लैंड को। The impact of land grants is a subject of heated debate of among the historian। अब जो इतिहासकार के बीच में है ये लैंड ग्रांट्स का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो बहुत डिबेटेबल है। ओके, some feel that अब कुछ some historians have different opinion regarding the land grant, so here कुछ कहना चाहते हैं हिस्टोरियन, चलिए देखते हैं। Some historians feel that land grants was part of a, यहाँ पे 1 पॉइंट ले सकते हैं, strategy adopted by what? Ruling lineages to extend agriculture to new area। कृषि को बढ़ाने के लिए वो लैंड ग्रांट्स करते थे। अदर्स क्या कहते हैं, सेकंड देखो, सेकंड हिस्टोरियन क्या कहते हैं, लैंड ग्रांट्स वर इन इंडिकेटेड टू वीकनिंग ऑफ व्हाट? पॉलिटिकल पावर। ओके, एज किंग वर लूजिंग कंट्रोल ओवर द देयर सामंत्स, दे ट्राई टू विन allies बाय मेकिंग ग्रांट्स टू लैंड। ठीक है, कुछ रूलर्स जो किंग थे वो अपने आप को वीक महसूस करने लगे, तो सामंत को खुश करने के लिए वो लैंड ग्रांट्स देने लगे। ठीक है, जो कभी युद्ध हो तो उनसे हम क्या सहायता मांग सके। दे ऑल्सो फील दे, तीसरा ये है, दे ऑल्सो फील दैट किंग ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज ए सुपरमैन। ओके, एज वी सॉ इन द प्रीवियस सेक्शन, बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल, दे वांटेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट फेशेड ऑफ पावर को दिखाना चाहते थे। ओके, लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इनसाइट द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? कल्टीवेटर्स एंड द स्टेट, कुछ दिखाती है जो कल्टीवेटर स्टेट के बीच कैसा रिलेशन था। However, there were people, कुछ ऐसे भी पीपल थे, कम्युनिटीज थे, जो often beyond the reach of what? Official and savant, like आप कह सकते हैं pastoralists, fish folk थे, hunter gatherers थे, mobile semi-sedentary artisan and shifting cultivators थे। Generally, such group did not keep detailed records of their what? Lives and transaction. Okay, so how would you classify the people described in the term of their occupation? तो आपको यहाँ पे वही पूछा गया कैसे आप क्लासिफाई करते हैं। अब देखो, अग्रहार वाज अ लैंड टू वेयर ब्राह्मण हु वाज, अब अग्रहा लैंड जो होते थे वो उसको एग्जेम्प्ट होते थे, किसको वो लैंड किसको दिया जाते थे? ब्राह्मण को दिया जाते थे, वो एग्जेम्प्ट होते थे, किसी प्रकार के टैक्सेशन उस पे इम्प्लाई नहीं होता था। वहीं पे लेके एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज द किंग एंड वाज ऑफन गिवन द right to collect these dues from local people. Okay, so and life in a small village, where we are going to see the people living in the small villages. Okay, where we'll see a study going to study Harshcharit. Okay, the Harshcharit is a biography of the Harshvardhan, okay, the ruler of Kannauj, composed in Sanskrit by his co-poet Banbhat. Okay,
बानभट्ट। ओके, सो उनके बारे में हम देखेंगे। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। अब कुछ ऐसे ये टेक्स्ट से कुछ लाइनें लिया गया है और ये देखते हैं लाइन के, एक्सट्रीमली रेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ इन ए सेटलमेंट। अब कोई रेयर रिप्रेजेंटेशन है जो उस पीपल की बात करेंगे जो विंध्या जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र उसमें जंगलों के बाहर आप देख सकते हैं कुछ कम्युनिटीज कैसे रहती है, कुछ कम्युनिटी कैसे रहती है, सॉरी। So we are discussing about a line from a text. This is an excerpt from the text where we are going to see the extremely rare representation, where we are going to see a rare representation of life in a settlement of the where in a forest area. यहाँ पे हम देखेंगे जो कुछ फॉरेस्ट एरिया में पीपल रहते थे और उनके लाइफ के बारे में हम जानने को देखते हैं। सो यहाँ देखते हैं the outskirts being for the most part of the forest, many parcel of rice land, threshing ground and a river land were being appropriated by the small farmers। यहाँ पे ये लाइन ये कहना चाह रही है जिसमें स्मॉल जो एरियाज थे फॉरेस्ट में, वहां पे छोटे छोटे जो राइस के लैंड थे वो आपस में क्या फार्मर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ओके, वेयर फ्यू फीचर्स आर स्प्रेड कल्चर्स owing to the difficult of flowing the space scattered fields। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है जो वहां पे फील्ड जो था वो कैसा था, बेसिकली वेरी टफ था। ओके, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है जिसके कारण वो वहां पे अच्छी तरह से उपजाऊ जमीन नहीं बना पा रहे थे। ओके, ग्रास विद देयर फ्यू क्लियर स्पेसेस, देयर ब्लैक सॉइल स्टिफ एज ब्लैक आयरन। इट मींस दैट वहां जो ब्लैक मिट्टी जो थी, ब्लैक सॉइल थी, जो काली मिट्टी थी, वो कितनी हार्ड थी, जैसे आयरन की तरह वो हार्ड थी। Okay, there were people moving along with bundles. There were few peoples वहां पे थे जो मूव कर रहे थे बंडल्स थे। और किस चीज की बंडल्स थे? बार्क थे, पेड़ों के छाल के बंडल थे। काउंटलेस स्कैक्स ऑफ प्लक्ड फ्लावर्स, वो फूल के बंडल्स थे वहां पे। लोड्स ऑफ फ्लैक्स एंड द हैम बंडल्स लाइक क्वांटिटीज ऑफ हनी, पीकॉक टेल। तो बेसिकली ये पैराग्राफ जो है वो कॉमन पीपल के बारे में लिया गया है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे जो कैसे छोटे छोटे पीपल जो वहां पे रहते थे, जो कॉमन पीपल वो कैसे अपने सर पे टोकरी रखे हुए थे, फूलों की टोकरी रखे हुए थे, हनी की टोकरी, पीकॉक, और वो हमेशा ये डिस्कस कर रहे थे उनको बेचने के बारे में। विलेज वाइव्स हैस्टन एंड रूट फॉर व्हाट नेबरिंग विलेज, ऑल इंटेंट थॉट ऑफ सेल, जैसे बेचने के बारे में। एंड बियरिंग ऑन देयर हेड्स पे बास्केट रखे होंगे। तो ये बेसिकली लाइफ इन ए स्मॉल विलेज में जो कैसे पीपल रहते थे उसका यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हिंदी में आप देख सकते हैं हर्षवर्धन एम्पायर। आप देख सकते हैं हर्षवर्धन जो रूल था उनका आप एम्पायर देखिए, जो कहाँ वेस्ट से ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ जो इंडिया था वहां पे इनका एम्पायर था। देन उसके बाद हम देखते हैं बानभट्ट, पोएट थे किनके? हर्षवर्धन टाइम के। अब ये कहाँ के थे वो देखते हैं। द ग्रेट पोएट बानभट्ट, द ऑथर ऑफ इंडियाज फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ अ किंग लाइक हर्ष चरित्र। ये उनके हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी थी वो इन्होंने लिखी थी और नाम क्या था? हर्ष चरित्र। ओके, द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट नोवेल इन्होंने भी लिखा था जो कादम्बरी नाम से बेसिकली जाना जाता है। ये ब्राह्मण फ्रॉम प्रीतिकुत विलेज इन मॉडर्न छपरा जो है बिहार में एक जगह आप बोल सकते हैं, वहां से बिलोंग करते थे। अ ग्रेट राइटर हु आल्सो रोट व्हाट ड्रामा कॉल्ड पार्वती परिणय। इन एक ड्रामा एक बुक लिखी थी जिसका पार्वती परिणय, वो किसके बारे में डिस्क्राइब करती है? डिस्क्राइबिंग द मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती, रॉयल पोएट ऑफ एम्पायर हर्षा, जैसे कि मैंने आपको कहा है। ओके, आप देखिए यहाँ पे हम देखेंगे पार्वती जो गुप्ता थी, चंद्रगुप्त सेकंड की जो डॉटर थी, उन्होंने कैसे लैंड डोनेट किया और उन्होंने क्या ऑर्डर दिए। ओके, प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ दानगुना, यहाँ पे देखते हैं। दिस इज व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स इन हर इंस्क्रिप्शन। अपने इंस्क्रिप्शन में वो क्या मैसेज देना चाह रही है? प्रभावती गुप्ता कमांड द गरमाता कुंभिनाश। ठीक है, किसे बोलते हैं? गरमाता कुतुम्बिनास हाउस होल्डर एंड पिजेंस, जो कहां रहते थे? लिविंग इन द विलेज में रहते थे। ओके, ब्राह्मण्स एंड अदर लिविंग इन द विलेज ऑफ दानगुना। बी इट नो टू यू दैट ऑन द 12th lunar day, ओके, जो 12th lunar day किसके? कार्तिका के। We have an order to increase our religious merit donated this village. We are going to donate few lands
टू दिस विलेज। ओके, प्रभावती गुप्ता वहां पे बोलती है मैं कुछ डोनेट करने जा रही हूँ रिलीजियस मैरिट के थ्रू, प्योरिंग ऑफ वाटर टू द आचार्य टीचर, जिसका नाम क्या था, चन्नलेश्वमिन। ओके, वी शुड ओबे ऑल हिज कमांड, तुम्हें यू शुड ओबे ऑल हिज कमांड, जो भी उनके कमांड थे, यू हैव टू ओबे, वी कैन फॉर द फ्लोइंग एग्जेप्शन टाइप क्लब अग्रहार। अग्रहार हम क्या पढ़े थे, वो ऐसे भूमि को बोले जाते हैं जिसपे टैक्स नहीं लगते राजा के द्वारा। ओके, वो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, उसको ही अग्रहार लैंड बोलते थे। तो वही है पहले, ये किस किस चीज से एग्जाम्प्ट हो सकते थे, obligation to provide grass, hides and seeds and charcoal. Okay, exempt from what, purchasing of fermenting liquors and digging, whatever वो fermenting of liquor अगर वहां कर सकते हैं, digging कर सकते हैं, उस पे कोई उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे जो इन्होंने लैंड डोनेट किया था। जैसे सॉल्ट के लिए exempt from what, माइंस एंड खदीरा ट्रीज, exempt from what, आप देख सकते हैं flowers and milk। Okay, together with the hidden treasure and deposit together with the major and minor taxes। तो all these जो taxes are basically हमें मिले हैं, वो ये कहा गया जो रॉयल, जो भी वहाँ प्रभावती गुप्ता जो थी, जो लेडीज थी, उन्होंने जो डोनेट किया लैंड, वो किस किस चीज से एग्जेम्प्ट थे। ओके, तो यहाँ पे वही वो बात कह रही है पैराग्राफ में। देन हम देख पाते हैं, उसके बाद देखो ये उनका पिक्चर है पोर्ट्रेट में, आप देख सकते हैं। देन ये समुद्रगुप्त, और देन कुछ वर्ड मीनिंग है जैसे देवपुत्रा, डेटी, सामंत, सबऑर्डिनेशन, प्रस्ती। प्रस्ती हमने पिछले लेक्चर में देखा, और इंस्क्रिप्शन और लिटरेरी कंपोजिशन रिटन इन विद प्रेज ऑफ किंग। किंग को प्रेज करने के लिए जो इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे उसको प्रस्ती बोलते हैं। ठीक है, वेल्लार किसे बोलते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, उजावर, अदमई। ओके, ट्रांसप्लांटेशन। So all different world have already mentioned in this slide. So just go and read this very carefully. Plowshare, hoe, agriculture, agrahar, जैसे हमने बोला, land granted to a Brahman which was usually exempt from paying land revenue and other taxes to the king. Okay, then हमने देखा patrons, prerogative. Okay, a right or privilege exclusive to a particular individual or class. सो ये सारे हैं। अब क्वेश्चन आंसर कुछ देखते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस है। द सुदर्शन लेक वाज लोकेटेड इन, बता सकते हो। द जातक वर रिटन इन, ये भी बता सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन। आयरन टिप्ड प्लग शेयर हेल्प इन, किसमें, वो आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। गहपति वाज हेड ऑफ हाउस होल्ड, अग्रहार वाज लैंड ग्रांटेड टू, किनको दान किए जाते थे। फिल इन द ब्लैंक्स, सुदर्शन लेक अगेन ट्रांसप्लेटेशन वाज सामंत, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट डू द जातक टेल्स अबाउट द किंग एंड सब्जेक्ट्स, जातक कैसे हमें बताती है राजा और उनके प्रजा के बारे में। तो वी हैव ऑलरेडी मेंशन ऑल आंसर्स, तो जस्ट गो एंड सी। हु वाज गहपति, व्हाट वर द लैंड ग्रांट्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, जैसे हमने डिस्कस द चेंजिंग कंट्री साइड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंस रूरल सोसाइटीज। ओके, describe the system of land grants and its impact area, write a note on प्रभावती गुप्ता and land grants। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस थे, फिर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, आपको इसको सॉल्व करने होंगे। ओके, देन उसके बाद है टाउन्स एंड ट्रेड। अब वहां पे देखते हैं ट्रेडिंग सिस्टम कैसा था, ट्रेड कैसे करते थे वहां पे। सो लेट्स सी, सो लेट अस रिट्रेस आवर स्टेप्स बैक टू द अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर की तरफ हम देखते हैं, जब इमर्ज हुआ था, इमर्ज सर्वल पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम C6th century BC की बात कर रहे हैं। वी हैव सीन मेनी ऑफ दीज वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद, जिसमें से बहुत सारे ऐसे क्या थे, महाजनपद के कैपिटल थे। ओके, वर्चुअली ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड थे, जितने भी मेनली टाउन थे, अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन पे लोकेटेड थे। सम सच एज पाटलिपुत्रा, और विच कहाँ पे लोकेटेड थे, रिवराइन रूट पे लोकेटेड थे, रिवर्स के साथ। ओके, अदर सच एज उज्जैनी वर अलोंग लैंड रूट्स, एंड इट सच एज पुहर, क्या बोलते थे, पुहर बोलते थे, वर नियर द, कहाँ, कोस्ट के पास। फ्रॉम वेयर सी रूट्स, जहां पे सी रूट्स बिगेन होती थी। मेनी सिटीज लाइक मथुरा वर बस्टलिंग सेंटर ऑफ कमर्शियल कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। ओके, सो यहाँ सिटीज की बात कही गई है, जो कहाँ पे सिटीज लोकेटेड थी, वहां पे क्या क्या
उनका वहां पे वर्क होते थे। अर्बन पॉपुलेशन, इलाइट्स एंड क्राफ्ट्समैन की हम बात करते हैं। वी हैव सीन दैट किंग्स एंड रूलिंग इलाइट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड, किलेबंदी, किले, हम फोर्टिफाइड सिटी मतलब किलेबंदी, चारों तरफ से उनको अच्छी तरह से ईंटों से किलेबंदी किया जाता था, घेर दिया जाता था। ओके, although it is difficult to conduct extensive excavation at most cities, अब यहाँ पे हिस्टोरियंस ये कहना चाहते हैं वो जो कुछ ऐसे सिटीज है जहां पे हम एक्सकेवेशन नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे क्या हो, अभी पीपल वहां पे रह रहे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सकेवेट देयर। ओके, देन पीपल लिव इन दीज एरियाज इवन टुडे। ओके, जैसे मैंने बोला, जैसे हड़प्पन में ऐसा नहीं था, बट वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम देम। These include क्या include है, fine pottery balls, dishes with glossy finish, okay, known as northern black, polished ware, probably used by rich people, and ornaments, weapon, vessel, figurine, lot of things were acquired and you can say excavated by the archaeologist. So here see again word meaning, Mahajanapada, capital, empire, subcontinent, located, all word meanings are here. Commercial, bustling, political activity, elite classes, artifacts, northern black, a type of fine shiny black pottery used in ancient India. Okay, terracotta inscription, pedestals. We have अब history of पाटलिपुत्रा। अब पाटलिपुत्रा का थोड़ा हिस्ट्री देखिए, वो बेसिकली व्हाई वी कॉल पाटलिपुत्रा। ओके, उससे पहले इसका नाम क्या था। देखिए, ईच सिटी हैड ए हिस्ट्री ऑफ इट्स ऑन, हर सिटी का एक अपना एक इतिहास होता है। लाइक पाटलिपुत्रा फॉर इंस्टांस बिगेन एज ए विलेज नोन एज पाटलीग्राम, इसे क्या बोलते थे, पाटलीग्राम बोला जाता था। देन इन द 5th century BC द मगध रूलर डिसाइडेड टू शिफ्ट देयर कैपिटल फ्रॉम कहां, फ्रॉम राजागाह टू, राजागाह मतलब राजगीर से, टू दिस सेटलमेंट एंड रीनेम्ड इट। By the 4th century BC, it was the capital of the Mauryan Empire and one of the largest city in Asia. Okay, subsequently its importance apparently declined. After that, जो importance था वो decline होते चली गई। Okay, और when the Chinese pilgrim Xu Zhang and visited the city in the 7th century, he found its ruins and with very small population. ओके, पहले इसका क्या था, बोला इमरजेंस ऑफ पाटलिपुत्रा, ठीक है। देन उसके बाद धीरे धीरे सिटी डिक्लाइन हो गई, और जब चाइनीज पिलग्रिम यहाँ पे शुरू यहाँ विजिट करते हैं तो उन्होंने देखते यहाँ पे बहुत लो पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी, और रूइंस उसके कुछ मिले। बाय द 2nd century BC वी फाइंड शॉर्ट वोट, कुछ हम और इंस्क्रिप्शन देखे शॉर्ट वोटी में, इज ए नंबर ऑफ सिटी, दीज मेंशन द नेम ऑफ द डोनर, डोनर का नाम लिखा गया है, एंड समटाइम्स स्पेसिफाई हिज हर ऑक्यूपेशन एज वेल। कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो डोनर के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। दे टेल अस अबाउट व्हाट, क्या बता रहे हैं हमारे बारे में, who lived in towns, जो टाउन्स में रहते थे, वॉशिंग फोक्स, वीवर, स्क्राइबर, कारपेंटर। तो यहाँ पे जितने जो ऑक्यूपेशन, जैसे डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो लोगों के थे, वो वहां पे इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे बताया गया है। ओके, समटाइम्स गिल्ड्स, श्रेणी, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राउड, मर्चेंट्स मेंशन एज वेल, जो पीपल वहां पे क्या उनका काम था वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। दीज गिल्ड्स प्रोबेबली प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, रेगुलेटेड प्रोडक्शन। अब जो गिल्ड सिस्टम था वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे, एंड मार्केटेड एंड फिनिश प्रोडक्ट। ओके, देन इट इज लाइकली दैट क्राफ्ट पर्सन यूज्ड एज अ रेंज ऑफ व्हाट, आयरन टूल्स, आयरन टूल्स को वो यूज करते थे, मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ व्हाट, अर्बन सिटीज। जो अर्बन सिटीज में जो धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली जो डिमांड बढ़ रही थी उसको फुलफिल करने के लिए। देन votive inscription record what, gifts made to religious institution, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जितने थे उनको जैसे गिफ्ट मिले थे। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, द गिफ्ट ऑफ एन इमेज, दिस पार्ट ऑफ एन इमेज ऑफ फ्रॉम मथुरा, मथुरा से। ओके, वन द पेडेस्टल इज अ प्रकृत इंस्क्रिप्शन, प्रकृत इंस्क्रिप्शन और मेंशन दैट वुमेन नेम नागपिया, द वाइफ ऑफ ए गोल्ड स्मिथ, जिसका क्या नाम था, नेम धर्म का, इंस्टॉल दिस इमेज इन ए श्राइन, वहां पे एक श्राइन में ये इमेज इंस्टॉल किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे, वेयर देयर एनी सिटीज इन द रीजन वेयर द हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन 3rd millennium BC, आपको बताना है ऐसा हुआ था यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन
का फ्लोरिश हुआ था, ये आप जस्ट गो एंड थिंक इट। सो अगेन वर्ड मीनिंग एनोनिमस, मालाबाथ्रोन किसे बोलते थे, सिनेमन, स्पाइसेस, टिंटेड, ट्रांसपेरेंट, सफारीज। सो ये सारे वर्ड मीनिंग है, जस्ट गो एंड रीड वेरी केयरफुली, यू कैन सी। ओके, facilitate coinage excavation, so you don't have to go anywhere. Here is the some important kingdom, कालचुरी, चालुक्यज आप देख सकते हैं, गुर्जर प्रतिहारा देख सकते हैं, ओके, पालाज आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने थे तोमर्स आप देख सकते हैं, जो राजपूत के, होशाला, चोलाज, पांड्याज, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, आप कुछ ट्रेडिंग सिस्टम देखते हैं सब कॉन्टिनेंट और उससे भी आगे, ओके, देख सकते हैं। From the 6th century BC, land and river, जो land और river क्या था, route criss cross the subcontinent and extended in various direction, बहुत सारे डायरेक्शन में जो लैंड रूट था उनका ट्रेडिंग का सिस्टम वो कैसे फैला हुआ था, ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया एंड उसके बियॉन्ड भी, एंड ओवरसीज फ्रॉम पोर्ट्स दैट डॉटेड द कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग अक्रॉस कहां, अरेबियन सी से ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका तक था, वेस्ट एशिया एंड थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। अब देखो कि यहाँ ट्रेड रूट कहां था, अफ्रीका से, अरेबियन सी से चाइना तक यहाँ पे फैला हुआ था ट्रेड रूट। रूलर्स ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दीज रूट्स, जो रूलर्स थे वो इस रूट को कंट्रोल करते थे बाय ऑफरिंग क्या, प्रोटेक्शन प्राइस चार्ज करते थे, ओके। दोज हु ट्रेवल्स दिस रूट इंक्लूड, अब कौन कौन से इस रूट्स में, ऑब्वियस सी बात हो गई, मर्चेंट्स आएंगे, पैडलर हु प्रोबेबली ट्रेवल ऑन फुट, मर्चेंट्स हु ट्रेवल विद कारवा एंड बलक कार्ट्स, okay, pack animals, so there were what, seafarer whose venture were risky but highly profitable, कुछ seafarer थे जो क्या था, उनके हाईली न्यू रूट की जैसे खोज करते थे, तो हाईली रिस्की थे बट हाईली प्रॉफिटेबल भी थे, ओके। यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुल मर्चेंट डेजिग्नेटेड एज ए मसातुवन आप बोल सकते हैं इन तमिल में, सेठी एंड सतवाहाज इन प्रकृत में बोल सकते हैं। ये वर्ड आपको याद रखने, कुड बिकम इनॉर्मसली रिच, बहुत रिच थे। वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सॉल्ट, ग्रेन, कोल्ट में ये सब फिनिश प्रोडक्ट आते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाके और बेचते थे, ओके। लाइक ये सब जो गुड्स के नाम है वो दिए गए। Spices, especially pepper, were in high demand. The Roman Empire as were textile and medical plants, and these were all transported across the Arabian Sea to the Mediterranean Sea. यहाँ पे जो ट्रेड रूट था, जो प्रोडक्ट्स थे कैसे अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी तक ट्रेड करते थे, ओके। देन है क्वाइंस एंड किंग, अब क्वाइंस एंड किंग्स के बारे में पता है। टू सम एक्सटेंट एक्सचेंज वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइनेज, पंचमार्क क्वाइन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ। क्या होते हैं पंचमार्क क्वाइंस, चलिए देखते हैं। मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, ओके, वर एमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज, उनको कहा जाता है अर्लीस्ट जो क्वाइन थे जो मिंटेड बनाए गए थे और उसको यूज किए जाते थे। दीज हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकेवेशन एट कहा, नंबर ऑफ साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, बहुत जगहों से ये मिले हैं हम सब कॉन्टिनेंट से, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक किसको बोलते हैं, जब हम किसी क्वाइंस के बारे में स्टडी करते हैं। हैव स्टडी दीज अदर क्वाइंस एंड रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क, ओके। अटेम्प्ट मेड टू आइडेंटिफाई द सिंबल ऑन पंचमार्क क्वाइंस विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी, किसी डायनेस्टी का उस पे सिंबल होता था, रूलिंग डायनेस्टी। अभी हम देखेंगे क्वाइंस को पिक्चर के थ्रू, ठीक है। इंक्लूडिंग द मौर्य, सजेस्टेड दैट दीज वर इशू बाय किंग्स, ओके। इट इज ऑल्सो लाइकली, ऐसा माना जाता है दैट मर्चेंट, बैंकर्स, टाउन्स पीपल इशू सम ऑफ दिस क्वाइंस, कुछ मात्रा में क्वाइन इशू करते थे। द फर्स्ट क्वाइन टू बियर द नेम एंड इमेजेस ऑफ व्हाट रूलर वर इशू बाय किसके द्वारा, इंडो ग्रीक रूलर जो थे वो पहले ऐसे क्वाइन यूज किए थे जो रूलर्स के उस पे नेम मेंशन थे, ओके। देन है हु एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड सेंचुरी बीसी, सेकेंड सेंचुरी बीसी। द कुशांस के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम मॉडलर कोर्स में हर इंडो ग्रीक कुशांस के जितने रूलर्स आए उसको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। जस्ट यहाँ अप्रोच है एनसीईआरटी को लेके चलना, ठीक है। कुशांस हाउएवर इशू द लार्जेस्ट होर्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन, बहुत मात्रा में उन्होंने गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के जारी किए
फर्स्ट गोल्ड क्वाइंस फर्स्ट सेंचुरी सी, ठीक है, लार्ज मात्रा। दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट with those issued by contemporary Roman Emperor and Parthian rulers of Iran। अब ये किसके आइडेंटिकल थे, ये जो गोल्ड क्वाइंस थे, और ये रोमन एम्पायर के और पर्थियान जो रूलर थे ईरान के, उसके पर्थियन रूलर, ओके, एंड हैव बीन फाउंड फ्रॉम सर्वल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। और कहाँ पे, सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में भी ये मिले हैं, ओके। तो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ गोल्ड क्वाइंस, अब बहुत मात्रा में जो सोने के सिक्के थे वो जारी किए गए, इंडिकेट द इनॉर्मस वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट वर टेकिंग प्लेस, ओके। ट्रांजैक्शन जो है बहुत लार्ज मात्रा में हुआ, ओके। देन बिसाइड होर्ड्स ऑफ रोमन क्वाइंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन साउथ इंडिया, जहां पे इसके अलावा जो रोमन क्वाइंस थे वो साउथ इंडिया में हमें भारी मात्रा में मिलने को मिले हैं। इट इज ऑब्वियस दैट नेटवर्क ऑफ ट्रेड्स वर नॉट कन्फाइंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज। साउथ इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर बट देयर वर क्लोज कनेक्शन थ्रू ट्रेड। हम देखे जाते हैं जो कैसे क्वाइन विद द हेल्प ऑफ क्वाइंस हाउ द कनेक्शन ऑफ ट्रेड वाज बेसिकली इनॉर्मस, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट। क्वाइंस वर ऑल्सो इशू बाय कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, उनके द्वारा भी क्वाइंस इशू किए गए, और इसमें से जो पहले थे योद्धेस ऑफ पंजाब के बारे में हम बात करते हैं, ओके। एंड पंजाब एंड हरियाणा में जो रहते थे, क्या, योद्धास। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड सर्वल, कुछ खोज निकाले बहुत सारे कॉपर क्वाइंस इशू बाय द योद्धास पॉइंटिंग टू द लेटर्स इन इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्सचेंज, ओके। जो इकोनॉमिक एक्सचेंज होता था वो यहाँ पे देखे गए, जो इकोनॉमिक एक्सचेंज में कैसे वो पार्टिसिपेशन करते थे। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड क्वाइंस वर इशू बाय गुप्ता रूलर्स, गुप्ता रूलर्स के द्वारा कुछ किए गए। द अर्लीस्ट इशू आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी, प्योरिटी जो था गोल्ड क्वाइंस का बहुत अच्छे मात्रा में था। These coins facilitated long distance transaction, लंबे डिस्टेंस का जो ट्रांजेक्शन होता था ट्रेड का उसको फैसिलिटेट करता था। From which king also benefited, जहां से किंग को भी लाभ होता था वहां पे बेनिफिट। फिर फ्रॉम 6th century C to onwards फाइंड ऑफ गोल्ड क्वाइंस टैपर ऑफ, कुछ गोल्ड क्वाइन में टैपर होने लगे, मतलब प्योरिटी उनकी कम होने लगी। डज दिस इंडिकेट दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या ये इंडिकेट करती है इकोनॉमिक क्राइसिस को, ओके। यहाँ पे ये हिस्टोरियंस कहना चाहे, हिस्टोरियंस आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, ओके। हिस्टोरियंस का जो व्यूज है वो डिवाइड करता है इस इशू पे। सम सजेस्ट दैट विद द कोलैप्स ऑफ द वेस्टर्न, कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कोलैप्स और फॉल होता है collapse of the Western Empire, long distance trade decline, okay, and this affected the prosperity of the states, communities and regions that had benefited from it. Other argue that new towns and networks of trade started emerging around this time. कुछ ट्रेड्स, न्यू ट्रेड्स सारे स्टार्टेड हो गए, ये भी एक व्यू हो सकता था। दे ऑल्सो, हिस्टोरियंस ये भी पॉइंट आउट करते हैं, थॉट फाइंड्स ऑफ क्वाइंस ऑफ दैट टाइम आर फ्यूअर, कुछ कम मात्रा में। क्वाइंस कंटिन्यू टू बी मेंशन इन इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। Could it be that there are fewer finds because coins were in circulation rather than big hoarded? जो coins circulation थे उसको historians ने यहाँ कहा है like hoarded, जमा coins के बारे में आप historians नहीं कह पा रहा है, नहीं describe कर पा रहा है। अब देख contemporary archaeological site, widespread transaction, hoard, political boundaries, connection, tribal, republic, we have all explained of different or difficult words in here this slide, just go and see। अब मलाबार कोस्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट डे केरला की यहाँ पे बात की गई है, ओके। उसके बारे में कुछ हम देखते हैं। here is an excerpt from एक राइटर था, एनोनिमस राइटर, ओके। वहां से कुछ हमें उनकी राइटिंग से कुछ हमें लाइनें मिलती है, जिसको बोला पेरिप्लस ऑफ द अर्जियन सी के बारे में, ठीक है। कंपोज बाय एनोनिमस ग्रीक सेलर के द्वारा वो लिखा गया था। They, the traders from abroad, and send large ships to these market towns on account of the great quantity bulk of, वहां पे उन्होंने ट्रेड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ शिप्स आते थे मार्केट में, और वहां से क्या कुछ गुड्स है वो जैसे लेते थे, जैसे पेपर हो गया, काली मिर्च हो गया,
Malabar, Turum, possibly cinnamon produced in this region. They are imported, कुछ imported करते थे. First place the great quantity of coin जिसको ओके टोपाज बोलते थे, ठीक है. एक मिनरल यूज्ड, एक कलरिंग सब्सटेंस के लिए, कुछ ऐसे मिनरल जो कलरिंग के लिए यूज करते थे. कोरल, क्रूड, ग्लास, कॉपर, टीन. देयर इज एक्सपोर्टेड पेपर. ओके, पेपर जो काली मिर्च होती थी. Okay, then which is produced in quantity in only one region near these markets. इसके अलावा there are exported great quantity of the fine pearls. मोती को वो एक्सपोर्ट करते थे. ivory, silk cloth, transparent stones and all kinds, diamonds and Spanish tortoise and so on. Archaeologists evidence of a bead making industry using precious and semi precious stones has been found in कोदुमनल. अब देखो तमिलनाडु में एक जगह है कोदुमनल, वहां पे क्या बीड मेकिंग इंडस्ट्री हमें मिली है. इट इज लाइकली दैट लोकेटेड ट्रेड्स ब्रॉट द स्टोन मेंशन इन द पेरिफेरल्स फ्रॉम साइट्स सच एज दिस कोस्ट पोर्ट. तो यहाँ पे बेसिकली मालाबार कोस्ट की बात कहा गया है, जहां पे कैसे डिफरेंट शिप्स आते थे और वहां पे डिफरेंट गुड्स का ट्रेडिंग होता था, एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था. इन विच वी हैव सीन रिगार्डिंग सेवरल गुड्स, सिनेमन, पेपर, काली मिर्च की बात, दालचीनी की बात कही गई है, बीड मेकिंग की बात कही है तमिलनाडु में कि बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी मिली है. उसी पे यहाँ पे मलाबार कोस्ट को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है. देन उसके बाद ये देखो यहाँ पे पंच मार्क कॉइन देख सकते हैं. यहाँ पे आप देखिए, सोने बिकॉज सिंबल्स वर पंच ऑन स्टम्प ऑन टू द मेटल सर्फेस. है ना यहाँ पे पंच, देख रहे कुछ सिंबल्स यहाँ पे है. Periplus is a Greek word meaning sailing around, and Archean was the Greek name for the किसका Red Sea को बोला जाता था. Numismatic is the study coins including visual elements such as what script and images. Numismatic जो coins की स्टडी करते हैं, उस पे क्या लिखा गया है, क्या डायग्राम है, क्या फिगर्स है, उसके बारे में स्टडी करते हैं. देन यहाँ पे आप देखिए गुप्ता कॉइन्स देखिए, अयोध्या कॉइन देखिए, सब पे कुछ इमेज आपको दिख रहे हैं. इसी को पंच मार्क कॉइन कहा जाता है. व्हाट आर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन ट्रेड, क्या ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व थे ट्रेड में. विच दिस ट्रांजैक्शन आर अपेरेंट फ्रॉम द सोर्स मेंशन, आर देयर एनी दैट आर नॉट एविडेंट फ्रॉम द सोर्सेज. अशोकन इंस्क्रिप्शन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा गया है, देखिए है ना. यहाँ पे आप देखिए ये कुछ लिपि है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसको देवनागरी से कैसे इसको कंपेयर किया गया है. यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहे हिस्टोरियन, अशोकन ब्राह्मण विद देवनागरी इक्विवेलेंट्स. क्वेश्चंस आप देखिए, मेनी अर्ली सिटीज डेवलप्ड अलोंग रिवर रूट्स. अब बहुत सारे क्वेश्चंस है. पंचमार्क कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वर मेनली यूज्ड बाय किसके द्वारा, रिच पीपल के द्वारा. न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स. सारे आपके क्वेश्चंस मैंने डाले, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं. ऑल क्वेश्चंस आर बेसिकली हियर, सो डोंट गो. शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने डाले. गिल्ड्स क्या होते हैं, गिल्ड्स आर एसोसिएट्स ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट. दे रेगुलेटेड प्रोडक्शन, फिक्स्ड प्राइस एंड इंश्योर क्वालिटी ऑफ गुड्स. So don't worry, we have already mentioned all questions answer. Just go read very carefully. ये आपको टेस्ट भी दे रखे जो आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं. आप देखिए बैक टू बेसिक, हाउ इंस्क्रिप्शंस आर डेसिफर्ड. यहाँ हम देखेंगे इंस्क्रिप्शंस को कैसे पढ़ा जाता है और क्या प्रॉब्लम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को फेस करना पड़ता है. तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं. सो फार वी हैव सीन स्टडिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंस्क्रिप्शन अमंग्स अदर थिंग, बट हाउ डू हिस्टोरियंस फाइंड आउट व्हाट इज रिटन ऑन देम, उस पे क्या लिखे जाते हैं. डेसिफरिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में यहाँ बताया गया है. मोस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी. द स्क्रिप्ट यूज्ड इन वेयर, अशोकन इंस्क्रिप्शन. फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर्स एडेड बाय, यूरोपियन जितने स्कॉलर थे उनको कौन हेल्प किया, इंडियन पंडित्स. वर्क बैकवर्ड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी बंगाली एंड देवनागरी. वो बैकवर्ड की तरफ गए जहां कंटेम्प्रेरी बंगाली देवनागरी जो लिपि थी. द स्क्रिप्ट यूज्ड इन राइट हिंदी, देवनागरी के बारे में कहा गया है.
manuscript comparing their letters with older specific, जो उनको लेटर्स मिले हैं उनको वो ओल्डर से कंपेयर कर रहे हैं. ओके, स्कॉलर्स हु स्टडी अर्ली इंस्क्रिप्शन समटाइम assume these were in Sanskrit, although the earliest inscription were in fact in Prakrit. Okay. Then उसके बाद it was only after the decades of Penn-Study investigation, okay, बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर द लॉट ऑफ इयर्स इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बाय सर्वल एपिग्राफिस्ट जो होते हैं, जैसे हमारे जेम्स प्रिंसेप थे, वो क्या थे, एबल टू डेशिफर अशोकन, क्या अशोकन जो स्क्रिप्ट थे जो लिखे गए थे अशोकन ब्राह्मी इन 1838 में. तो आपसे पूछा जाता है जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने कौन सी स्क्रिप्ट को डेशिफर किया था, तो आप क्या बोल सकते हो, ब्राह्मी एंड खरोस्ती. ओके, आप बोल सकते हैं हाउ खरोस्ती वाज रीड द स्टोरी ऑफ द डेसिफरमेंट ऑफ खरोस्ती, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन वेयर इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट जो पास था. अब जैसे इंडिया का मैप है, चलिए एक मैप लेते हैं आपके लिए. जैसे ये देखो इंडिया का जैसे मैंने मैप बनाया, ठीक है, ये जैसे ऐसे मैप है. तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जितना भी ये सेक्शन था, यहाँ पे हमें क्या खरोस्ती जो स्क्रिप्ट है वो हमें मिला है. ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया, कहाँ पे, यहाँ पे थे. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इट इज डिफरेंट हेयर फाइंड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ व्हाट, इंडो ग्रीक्स. इंडो ग्रीक्स के जो सिक्के थे हमें वो भी मिले हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. ओके, हु रूल्ड ओवर द एरिया, जो हाँ उस एरिया में वो रूल्ड किए. ठीक है, ओके. उसके बाद have facilitate matter. These coins contain the names of, किसके नेम कंटेन होंगे उस कॉइन्स पे, राइटर इन ग्रीक एंड written in Greek and खरोस्ती स्क्रिप्ट पे. यूरोपियन स्कॉलर who could read the former compare the later. अब जो स्कॉलर होते हैं यूरोपियन वो कंपेयर करते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द सिंबल ऑफ ए कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग नेम सच एज Apollodotus. Of Apollo with Prinsep identify the language of the Kharosti inscription as Prakrit. It become possible to read longer inscription as well. जब जेम्स प्रिंसेप ने इनको फाइंड आउट किया और उससे with the help of those script they can try to correlate the वेस्टर्न रोमन्स जो थे, वेस्टर्न जो इंडो ग्रीक थे उससे वो रिलेट किया. ब्राह्मी खरोस्ती स्क्रिप्ट को जो डिफरेंट सिंबल्स थे, डिफरेंट वर्ड्स थे, उनको कोरिलेट वो किए. जैसे ए को कैसे लिखा जाता है आपने वहां पे देखा होगा, अभी जैसे हमने दिखाया आपको डायग्राम में. हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, अब कुछ एविडेंस देखते हैं हम इंस्क्रिप्शन से. टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफिक्स एंड हिस्टोरी वर्क, लेट अस लुक एट 2 अशोकन इंस्क्रिप्शन मोर क्लोजली. 2 ऐसे अशोकन इंस्क्रिप्शन को हम अच्छी तरह से देखते हैं. नोट दैट नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन. जैसे अशोका का जो नाम था इंस्क्रिप्शन में नहीं मेंशन गया है, इसकी जगह उन्होंने क्या यूज किया है, टाइटल से डॉट देवनाम पिया. देवनाम पिया ऑफन ट्रांसलेटेड एज बिलोव्ड ऑफ गॉड्स. ओके, लिखा गया है. ठीक है, देन उसके बाद बिलोव्ड ऑफ गॉड्स एंड पियादसी pleasant to behold. The name Ashoka mentioned in some other inscription which also contain these titles. अब जो ये टाइटल्स है बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में मिला है जहाँ अशोका के नेम भी मिले हैं. आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल दीज इंस्क्रिप्शन, जब आर्कोलॉजिस्ट हर इंस्क्रिप्शन को एग्जामिन करते हैं एंड फाइंडिंग दैट दे मैच इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज, पैलियोग्राफी, एपिग्राफिस्ट एंड ऑल सो ऑन, ओके, हैव कंक्लूडेड दे वर इशू बाय द सेम रूलर. अब इससे कंक्लूड निकालते जो ये सेम रूलर के द्वारा ही इशू किया गया था. क्या कहता है, बिलोव्ड ऑफ द गॉड्स एंड दूसरा प्लीजेंट टू बीहोल्ड. ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ओके, यू मे आल्सो हैव नोटिस दैट अशोकन क्लेम दैट अर्लियर रूलर्स हैड नो अरेंजमेंट्स टू रिसीव रिपोर्ट. जो अर्लियर रूलर्स थे उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं था कोई भी रिपोर्ट आता है उसको रिसीव करने के लिए. इफ यू कंसीडर द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट प्रायर टू अशोका, अशोका से पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट का. डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या आप ऐसा सोचते हैं जो ये स्टेटमेंट सही है? हिस्टोरियंस हैव टू कंस्टेंटली असेस स्टेटमेंट मेड इन व्हाट इंस्क्रिप्शन टू जज वेदर दे आर ट्रू, पॉलिसिबल और एग्जीगरेशन.
अब हिस्टोरियन यहाँ पे ये स्टडी करके फाइंड आउट लगाने चाहते हैं ये एग्जरेट किया है या पॉलिशिबल किया है। ओके यहाँ पे लेगा डू यू नोटिस दैट देयर आर वर्ड्स विद इन ब्रैकेट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे ब्रैकेट में एपिग्राफिस्ट समटाइम्स एडेड दिस मेक द मीनिंग व्हाट सेंटेंस क्लियर, दिस हैज टू बी डन केयरफुली, ये हमें बहुत केयरफुली स्टडी करना होगा to ensure that the intended meaning of the author is not changed. Historians have to make other assessment as well. अब historians ये है उनको other assessment भी करना होगा जिसके कारण जो meaning है वो change ना हो सके। Okay, if a king's order were inscribed on natural logs near cities or important routes of communications, would passers have to stop to read this. अब कुछ भी वहां पे जो इंस्क्रिप्शन लिखे गया है जो स्टोन पे पिलर्स पे, उसको जो पैसेंजर जो ट्रेवलर्स है वो उसको पढ़ेंगे तो क्या मैसेज दिया गया है यहाँ पे हिस्टोरियंस, इसलिए वो वहाँ स्टोन पिलर्स पे इंस्क्राइब किया जाते थे कुछ मैसेज। मोस्ट पीपल वर प्रोबेबली नॉट लिटरेट, बहुत सारे ऐसे पीपल थे जो पढ़ नहीं सकते थे। डिड एवरीबॉडी थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड द प्राकृत यूज इन पाटलिपुत्रा, यहाँ पे ये पूछा गया जो क्या हर लोग जितने भी थे वो प्राकृत लैंग्वेज समझ पाते थे या नहीं पाटलिपुत्र में। वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव बीन फॉलोड, जो भी किंग के ऑर्डर थे वो फॉलो किए जाते, यानी आंसर टू सच क्वेश्चन आर नॉट ऑलवेज इजी टू फाइंड, और जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे लिए आसान नहीं है फाइंड आउट करना। Okay, some of these problem are evident if we look at Ashokan inscription। आप कुछ हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम देखते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन में, which has been often interpreted as reflecting the anguish of the ruler, जहाँ पे रूलर्स को एंग्विश दिखाया गया है, कष्टपूर्ण दिखाया गया, एज वेल एज मार्किंग ए चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वारफेयर, और कुछ उसके एटीट्यूड वार जो होते थे युद्ध होते थे उससे एटीट्यूड टुवर्ड्स द चेंज, मतलब किसका रूलर्स का एटीट्यूड चेंज हुआ युद्ध के प्रति। एज हम देखेंगे कलिंगा वार को यहाँ पे अच्छी तरह, एज वी शैल सी द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स once we move beyond reading the inscription at face value. While Ashokan inscription have been found in present-day Odisha, the one depicting his anguish is missing. In other words, the inscription has not been what? Found in the region that was conquered. कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन देखेंगे जो हमें वहां पे नहीं मिले जहां पे कॉन्केयर किए थे क्या उड़ीसा, कलिंगा, प्रेजेंट डे वर्ड उड़ीसा को बोलते हैं। क्या inscription has not been found in the region that was conquered, मतलब जीता गया। what are we to make of that, हम क्या इसे पता लगाते हैं, is that the anguish of the recent conquest was too painful in the region and therefore the ruler was unable to address the issue। अब देखो अशोका था कलिंगा को जीतता है, ओके, जीतने के बाद उसको पता क्या लगता है, बहुत सोरो, बहुत पेनफुल वो फील करता है क्योंकि देखता है लाखों संख्या में लोग मारे गए, ठीक है, घर उजड़ गए, तो जिसके कारण उनको बहुत पेनफुल होता है और वो क्या बुद्धिज्म की तरफ वो अग्रसर होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, तो वहां पे उन्होंने इसलिए वहां पे इंस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। देखो ऑर्डर्स ऑफ द किंग, तो यहाँ पे हम देखते हैं कलिंगा, देखो द स्पीक किंग देवनाम पियादसी इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजिंग अफेयर नॉर फॉर रिसीविंग रेगुलर रिपोर्ट्स बट आई हैव मेड द फ्लोइंग। ओके, अब देखिए पतिवेदकाज क्या होते, शुड रिपोर्ट टू मी। अब पतिवेदकाज क्या होता है, जैसे कोई भी इंफॉर्मर आप बोल सकते, उसको कुछ चीज का इंफॉर्मेशन पता लगा, तो अगर राजा किसी भी जगह हो, चाहे वो किस में हो, चाहे वो बगीचे में हो, चाहे अपने चैम्बर में हो, चाहे अपने शयन कक्ष में हो, तो रिपोर्टर्स वहां पे जाके कोई इंपोर्टेंट रिपोर्ट है वो उसको दे सकता था। दे आर फ्री टू मूव। ओके, तो उन्हीं को पतिवेदकाज कहा जाता है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, शुड रिपोर्ट टू मी अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पीपल एट ऑल टाइम्स, किसी भी समय, हमेशा, एनीवेयर, वेदर आई एम ईटिंग, चाहे मैं खाना खा रहा हूं, चाहे मैं क्या हो इनर अपार्टमेंट में हूं, चाहे बेडरूम में हो, चाहे काउपेन इन द काउपेन बियरिंग कैरिड और इन गार्डन, मतलब मैं कहीं भी हूं, राजा ने ऑर्डर पर्टिकुलर दे गया था, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ अफेयर है पीपल के बारे में, तो आप मुझे कभी भी वो बता सकते हैं। एंड आई विल डिपोज ऑफ द अफेयर ऑफ द पीपल एवरीवेयर। सो ये एपिग्राफिस्ट है, ट्रांसलेटेड द थंब, जैसे मैंने बोला आपको, ये देखिए
प्रतिवेद का एज ए रिपोर्टर यहाँ पे बोला गया है। ये क्वाइंस है जैसे कि एन एंग्विश ऑफ द किंग। अब यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, वही अशोका के बारे में देखिए कैसे वो कलिंगा को जीतने के बाद उनको क्या पीड़ा महसूस होती है। When the king Devnampiya Desi had been ruling for 8 years, 8 साल तक रूलिंग करते, the Kalinga present day what Orissa was conquered by him. Okay, 150,000 men were deported. Okay, 100,000 were killed and many more died. After that, now that the Kalinga has been taken, Devnampiya is devoted to intense study of Dhamma. उसके बाद उन्होंने धम्मा को स्टडी करना स्टार्ट किया। ओके, टू द लव ऑफ धम्मा एंड टू द इंस्ट्रक्टिंग इन धम्मा, ओके, टू द पीपल। दिस इज द रिपेंटेंस ऑफ देवनामपिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द व्हाट, द कलिंगास के बारे में। For this is considered very painful and deplorable by Devnampiya that while one is conquer and unconquer, slaughter, death and deportation of world take place. अब यहाँ पे जब ओबेसी बात है, कहीं पे युद्ध होगा, वो आप किसी कंट्री को एक्वायर कर रहे हैं तो वहाँ पे इजिली तो नहीं होगा, पेनफुल होगा, लोग मरेंगे। तो यहाँ पे वही देवनामपिया के बारे में बात किया गई, लाइक अशोका के बारे में। लोकेशन ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया गया है आपको, कहाँ पे देखो इंस्क्रिप्शन, डेसिफर, ये सारे मैंने मीनिंग लिख दिए, जस्ट गो एंड सी द लिमिटेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन, इंस्क्रिप्शन के क्या क्या लिमिटेशन हो सकते हैं वो यहाँ पढ़ना है। By now it is probably evident that there are limits to what epigraphy can reveal. Sometimes what technical limitation, one, there are later very faintly engraved, अच्छे तरह से नहीं लिखे गए, and thus reconstruction are uncertain. Also inscription may be damaged है, letters कुछ के missing है। Besides it is not always easy to be sure what about exact meaning उसका क्या है, okay, of the words used in inscription, some of which may be specific to a particular place or time. If you go through the epigraphical journal, you will realize that scholars are constantly debating and discussing alternate ways of reading inscription. अब जो इंस्क्रिप्शन में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है स्कॉलर्स को, तो ये डिबेटेबल टॉपिक है, जो क्या अल्टरनेट वेज और हो सकते हैं स्टडी करने के लिए। ओके, ऑल्दो सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शन हैव बीन डिस्कवर्ड, नॉट ऑल हैव बीन डिस्कवर्ड, पब्लिश्ड एंड ट्रांसलेटेड। जो बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिसको हम ट्रांसलेट नहीं किए हैं, अभी तक पब्लिश नहीं किए हैं। Besides, many more inscriptions must have existed which have not survived the ravage of time. बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो अभी है बट वो टाइम के साथ अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। सो व्हाट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट, तो हम अभी क्या देखेंगे प्रेजेंट में, प्रोबेबली ओनली अ फ्रैक्शन दैट वाज इंस्क्राइब। कुछ टुकड़े हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन का और उसी को हम पढ़ते हैं और उसी से हम पता लगा पाते हैं अर्ली सोसाइटीज के बारे में। देयर इज अनदर परहैप्स मोर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, देखते हैं। नॉट एवरीथिंग दैट वी कंसिडर पोलिटिकली और इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंट वाज नेसेसरली। अब जितने इंस्क्रिप्शन है इसका मतलब ये नहीं है जो पोलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है, ओके, नेसेसरली रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल लाइक देते, रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड जॉय एंड sorrow of daily existence find no mention in inscription, which focus more often than not on grand unique events. Besides इसके अलावा the content of inscription almost invariably project the perspective of the person who commission. As such they need to juxtapose with other perspectives so as to arrive better understanding of the past. अब वही जो prosperous people है, जो rich classes है, वही कुछ inscription inscribe किया गया। There is no any evidence of joy and sorrow of the common people, वहां पे ये लिखा गया है। So thus epigraphy alone does not provide all understanding of political and economic history. Also historians have questioned both old and new evidence. कुछ ऐसे old and new evidence है, उसके बारे में scholars क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। in early 19 and early 20th century के बारे में कहते हैं, were primarily interested in the histories of king. किसके histories के बारे में interested है, राजा के history के बारे में। फ्रॉम द मिड 20th सेंचुरी की बात करते हैं,
issues such as economic changes and ways in which different what social group emerged have assumed more importance. कुछ ऐसे सोशल ग्रुप इमर्ज होते हैं सोसाइटी में, आते हैं, उनका उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होता है, जिसके कारण जिसके लिए हिस्टोरियंस मोर फैसिनेटिंग है उनकी हिस्ट्री के स्टडी करने में, ठीक है। रिसेंट डिकेड्स हैव बीन सीन अ मच ग्रेटर प्रीऑक्यूपेशन विथ हिस्ट्रीज ऑफ व्हाट, जैसा मैंने अभी बोला मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो हो गए, दिस विल प्रोबेबली लेड टू फ्रेश investigation of old sources and development of new strategy of एनालिसिस। ओके, सो यहाँ पे हिस्टोरियंस ये कहना चाहते हैं जो न्यू ग्रुप न्यू कम्युनिटीज का जो सोसाइटी में डेवलप होता है उसके बारे में हमें एनालाइज करना है, उसके बारे में प्री ऑक्यूपेशन वो करते हैं जो सोसाइटीज को हमें स्टडी करना है। देन हम देखिए कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं जब किसी को भूमि दान दिया जाता था तो वहां पे देखते कैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है सारा डिटेल एवरीवेयर। ओके, सो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है सबके बहुत अच्छी तरह आप देख सकते हैं। लिमिटेशन ऑल वर्ड्स मीनिंग्स आ रही है, जस्ट गो एंड डाउनलोड दीज पीडीएफ्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, okay, lot of questions are there, important definition, epigraphic, the study of inscriptions, inscription को पढ़ते, what is epigraphy, again questions answers, lot of questions are already there, long, short, very short, then उसका fill in the blanks। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। ओके, तो ये कुछ टाइम पीरियड दिया गया है, इसको आप एक बार अच्छी तरह से पढ़े। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे टाइम पीरियड देखो। डिसिफरमेंट कब किसे में, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। डिसिफरमेंट ऑफ अशोकन ब्राह्मी बाय जेम्स ब्रेम, ये बहुत क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, देन उसके बाद देख सकते हैं जो भी आपके बुक के लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे उसको मैंने सबको अच्छी तरह से समराइज किया है, आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, जो आपको कहीं भी किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़े, आप बस जाइए इसको पढ़ना है और एग्जाम में बस आपको ऐसे ही लिखना है और यू हैव टू गेट गुड मार्क्स। ओके, सो विद दिस वी हैव फिनिश ऑल लेक्चर्स। ओके, सो हमने ये सेकेंड चैप्टर थीम सेकेंड कर लिया, अगेन वेरी ट्रिकी चैप्टर बट I have to simplify all these chapter in very simple manner. So you also know our all these foundation courses are going on. Just go and see all these courses also. And after a few couple of months, our modular courses is also going to launch on history, economy, geography, political science. अब देखो अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम हर चीज अच्छी से नहीं पढ़ रहे हैं। गुप्ता रूलर्स के कितने रूलर्स हुए, उनका क्रोनोलॉजी क्या था, वो सब हम सारे मॉडलर कोर्स में करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। टाइम पीरियड क्या था, ओके, इकोनॉमी हम पढ़ेंगे अच्छी तरह, इसको देखेंगे। करंट अफेयर्स देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, जैसे डेक्कन प्लेटू है, फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन प्लेटू, कैसे कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं, वो पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। तो हर चैप्टर को हम मॉडलर कोर्स में और अच्छी तरह से करेंगे। ये जस्ट आपको बेसिक बनाने को बनाया जा रहा है, जो आपका बेसिक ऐसा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, तो प्लीज रिव्यू एंड कमेंट। ओके, सो आई कैन डू माई बेस्ट एंड आवर MLM टीम ऑलवेज विद यू। So thank you so much.